दोस्तों नमस्कार। द विजन ऑफ सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन की श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और हर एक वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पर। तो यहाँ पे जो आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशंस। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius of 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो हमें ये पता करना है। तो आप देखिए, according to the statement of the question, it is given that a square and side of square is 4 centimeter and 4 quadrant is cut that you can see in the figure. This is a square. Let us, this is the figure and figure you will got in the examination. So dear, here is given that this is a square A, B, C and D. A, B, C and D, and there are 4 quadrant cut from each of the corner of this square. Okay, and the radius of this quadrant is 1 centimeter, and other circle just into the center of the square, and the diameter of this circle is 2 centimeter, and therefore radius of the circle is 1 centimeter. You will get here. Let us, this is a center of the square circle having diameter 2 centimeter. Okay, तो हमें क्या पता करना है, ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। शेडेड रीजन मीन्स ये एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे? आई थिंक दैट यू विल अप्लाई द प्रोसेस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड देन सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट and subtract the area of the second quadrant and subtract the area of the third quadrant and subtract the area of the fourth quadrant and also subtract the area of the middle circle. तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। व्हाट इज गिवन हियर? सो डियर, गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर is given here 4 centimeter. Okay, and radius of each quadrant is 1 centimeter. So you will write these things also. Radius of each quadrant this is equal 1 centimeter, and diameter of middle circle you will write here these things. Diameter of middle circle, अदर सर्कल भी आप लिख सकते हैं। This is how much dear? 2 centimeter. So now what to do after this? First of all you will find the radius of this circle also. Therefore radius of the circle
equal to 2 by 2 means 1 centimeter. This is the radius of the middle circle. Now you can find the area of shaded region. Directly you will use here formula. Now area of shaded region. What to do, dear? You will write here area of square and then minus एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे. एरिया ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर 2 सेंटीमीटर. एंड प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. तो हम लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट. एंड देन क्लोज दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट क्यों क्लोज किया है, क्योंकि हमें जो 4 क्वाड्रेंट का एरिया है और एरिया ऑफ सर्किल को कंबाइंड करना है और उस कंबाइंड एरिया को एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस करना है. तो चलिए, आपको अच्छे से पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है. अभी सबसे पहले आप सभी फॉर्मूले यहां पुट करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स दिस इज side square and area of circle means dear pi r square plus area of quadrant. Do you know what do you mean by quadrant? Quadrant means 1/4 part of the circle. So first of all you will write 4 because there are 4 quadrant. And after that into 1/4 part of the circle means you will write here 1/4 and 1/4 part of circle means quadrant and area of circle means pi r square again. So now dear, you can see here in this step 4 and 4 cancelled out. And you will get same things here, pi r square and pi r square. And if you add it, then you will get here that is side square. Side of the square is 4 centimeter. So you will write 4 centimeter whole square and minus 2 into pi r square. Because radius is same for both circles, that is area of radius of quadrant is also 1 centimeter and radius of middle circle is also 1 centimeter. So you can add these areas respectively. अगर यहाँ पे रेडियस डिफरेंट होता तो हम यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते तब सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे दोनों का रेडियस, क्वाड्रेंट का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो मिडिल सर्कल है उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है. तो सेम रेडियस है, इसका मतलब एरिया भी सेम ही होगा. तो हमने दोनों को प्लस कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर. सारी वैल्यूज जो आपको पता है वो पुट कर दीजिए. सो डियर यू कैन राइट हियर दैट इज 4 स्क्वायर मीन्स 16 and centimeter square means centimeter square minus 2 you will write same to same. Pi means 22/7 and r means 1 only, 1 centimeter square. So on solving you will get
16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 into 2. How much, dear? This is 22 and into 2. 22 2 ja 44 and 44 into 1. 1 square means 1 ही होगा, तो 44 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यस ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, दिस इज 22 को 44 से 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44 एंड डिनोमिनेटर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ डियर यू कैन टेक द LCM फॉर सॉल्विंग इट. देन यू विल गेट हियर LCM of both term is 7 and 16 7 जा 112. क्या करना है, ये यहाँ आप डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 16 को डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 है सीधा यहाँ पे आएगा, तो 16 7 जा 112 एंड माइनस 44, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 44 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. 112 minus 44, you will get it 68. So you will write here 68 by 7 and centimeter square. But it cannot be cancelled out. ये तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनली आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट इतना ही लिख के छोड़ना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दिस इज योर आंसर. नाउ डियर मूविंग फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2. द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with the centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circles touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो यहाँ पे आपको क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ क्लियर लिखा है इन द गिवन फिगर. तो यहाँ पे फिगर इस क्वेश्चन में भी आपको दिया जाएगा, आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद अपने स्टेटमेंट को भी ध्यान से समझेंगे, और स्टेटमेंट को समझने के बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ स्टेटमेंट में आपको क्लियर कहा गया है ABCD जे स्क्वायर, ये आपका एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में 4 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इसमें कहा गया स्टेटमेंट में कि अगर सर्कल A को सेंटर लेके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल A B C D तीनों सर्कल को टच करता है. अगर हम B सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल B A D और C को भी टच करता है. मीन्स जो भी 1 सर्कल लेते हैं वो अदर 3 सर्कल को टच करता है. तब आपको ये बताना है कि ये सैडेड रीजन का एरिया क्या होगा. दिस इज डियर सैडेड रीजन. इस सैडेड रीजन का आपको एरिया बताना है. तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से इस डायग्राम में कि आपका ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है. 4 सर्कल दिए हैं और चारों सर्कल में इस पार्ट को आप क्या कहेंगे. दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, मीन्स इसे आप कहेंगे क्वाड्रेंट. इसी तरह से ये भी क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट होगा, ये भी क्वाड्रेंट होगा. तो यहां भी कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं. लेकिन यहां क्वाड्रेंट का रेडियस आपको नहीं दिया हुआ है, तो क्वाड्रेंट का रेडियस आपको फाइंड करना होगा. तो उसके लिए आपको यहां गिवन क्या है? ओनली हियर इज गिवन दैट द साइड ऑफ स्क्वायर is 14 centimeter. So first of all you will write here for the solution of this question, आप यहां पे लिखेंगे side of square
इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, केवल इतना ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जब ये साइड यहां से लेकर यहां तक 14 है, या फिर तो ये पार्ट इतना कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ। ये पार्ट भी जस्ट हाफ हो जाएगा। मीन्स आपको यहां से आसानी से इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। ये टोटल पार्ट कितना है 14, तो इसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, यू विल गेट दिस इज रेडियस। तो रेडियस फाइंड करना आसान हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ईच सर्कल। देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सर्कल दिस इक्वल टू 14/2। 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। ये क्यों हो गया, क्योंकि सभी सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो ये जो साइड है वो आपका डबल हो जाएगा रेडियस का। तो हमने यहां पे रेडियस भी फाइंड कर लिया। अब हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, व्हाट टू डू फॉर दिस, आपको क्या करना है, एरिया स्क्वायर का पता करेंगे। इस केस में आप ध्यान से समझिए कि यहां पे जो स्क्वायर का एरिया है और उसमें कुछ ब्लैंक पार्ट है जिसको आपको हटा देना है। तो ब्लैंक पार्ट आप कौन सा समझ रहे हैं, ये जो क्वाड्रेंट है इस एरिया को आपको माइनस कर लेना है। तो ये मैथमेटिकली इसको क्या कहेंगे, इसे सेक्टर भी कह सकते हैं और इसको हम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। तो सेक्टर अगर कहते हैं तो सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना होगा। क्वाड्रेंट अगर कहते हैं तो यहां पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो चलिए हम सर्कल का एरिया ही यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने क्वाड्रेंट हैं आपके पास, 4। तो आप लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। और इस केस में आपको दोनों फॉर्मूले पता हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस एरिया 4 तो पहले लिख लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट मींस 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां 1/4 लिखेंगे और सर्कल का एरिया लिखेंगे πr²। So here you can see that here once again 4 and 4 has been cancelled. Okay, now here you put the values. The given values is side is 14, so you will write 14 centimeter whole square and minus pi means 22/7, and radius you have to find here how much dear. You can see that this is the radius of the circle means 7 सेंटीमीटर। ये जो है ना ये आपका सर्कल का रेडियस है। तो आप यहां पे लिखेंगे 7 स्क्वायर। ओके, so 7 centimeter whole square. Now on solving for this step you will get easily 14 square means 196. तो आप यहां पे लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड माइनस 7
22/7 और 7 स्क्वायर को लिखेंगे 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 × 7 को 49 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज दिस 7 इज कैंसिल्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर 7. So remaining things you will get here 196 centimeter square minus 22 into 7. Do you know? 22 into 7, this is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट देन यू विल गेट द रिजल्ट फॉर दिस, दैट इज 196 minus 54 dear, you will get it 42 centimeter square. So finally you can write this is the answer of your question. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आपके पास आ गया। नाउ सो डियर, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड the region in the given figure common between the two quadrants of circles of radius 8 centimeter each। तो यहाँ पे आपको फिर से एक डिजाइन जो दिया है, उस डिजाइन में आपको ये जो दिया हुआ है वो स्क्वायर है। Why? Because each side is 8 सेंटीमीटर। तो ये जो डिजाइन होगा, इस डिजाइन का शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। Why? Because this is 8 and this one is 8, also last one is 8, so this is a square. So first of all you will write the side of this square, this is given 8 सेंटीमीटर, और आपको डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। डिजाइन आप देख रहे हैं, कौन से डिजाइन की यहाँ बात की जा रही है, इस डिजाइन के एरिया को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर आप इस पार्ट को ना देखें, केवल हम यहाँ पे एक लाइन सेंटर पे ड्रॉ कर लेते हैं, डिजाइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। हमने यहाँ पे इस तरह से इस पार्ट को हाइड कर दिया, ये पार्ट हटा दें। तो अब आप बताओ कि ये टोटल पार्ट यहां से ये पूरा मैंने ड्रॉ कलर कर दिया, आप बताइए इस पार्ट को आप क्या कहेंगे। ये पार्ट आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा ना। अगर ये क्वाड्रेंट हो जाएगा तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने फिर से अब इस पार्ट को इस तरह से कलर कर दिया। इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, ये पार्ट भी आप क्या बोलेंगे इसको, दिस इज अगेन क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट होगा। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट को, इसका भी एरिया फाइंड कर लें और दोनों को प्लस कर दें, तो जब प्लस करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं इस पार्ट का एरिया तो आपको मिलेगा, जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं इस व्हाइट पार्ट का एरिया आपको ये मिल जाएगा, और यहां भी व्हाइट पार्ट का एरिया मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट का एरिया आपको 2 बार मिलेगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे तब भी ये इंक्लूड होता है, और जब आप टॉप पार्ट से यहां से एरिया क्वाड्रेंट का फाइंड करेंगे तब भी ये इंक्लूड हो जाता है। तो ये एरिया 2 बार मिल रहा है। तो अगर हम यहां पे क्या करते हैं, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को प्लस कर लें और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर पूरा का पूरा माइनस कर दें,
तो ये साइड रीजन भी माइनस हो जाएगा और ये पार्ट भी माइनस हो जाएगा, ये पार्ट भी माइनस हो जाएगा और ये जो सैडेड रीजन दो बार आपका यहाँ इंक्लूड हो रहा था उसमें से वो 1 टाइम्स पार्ट बच जाएगा। तो वही आपका डिजाइन है और वही आपको चाहिए। So dear, we will write here first of all that side of the square this is dear 8 centimeter. Okay, now what to do? आपको ये मैंने बता ही दिया कि ये पार्ट क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस तो आप बता ही सकते हैं, रेडियस इज द सेम 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख लेते हैं। नाउ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट आपको यहां पे दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट this is dear same to same, that is 8 centimeter। तो ये रेडियस भी हो गया इसका और साइड का स्क्वायर भी 8 सेंटीमीटर हुआ। अब है इस क्वाड्रेंट का हम एरिया पता करेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम? इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इस क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे ये कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका नाम ले लेते हैं। दिस इज डियर ए बी, इसको इसी तरह से लेते हैं जो डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम में इस तरह से पहले आपको ABCD दिया है, कुछ नहीं दिया है। आप देखिए डायग्राम आपका क्या शो कर रहा है। दिस इज ए डायग्राम, कोई नाम नहीं है यहाँ पे, सिंपली डिजाइन दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ऐसे लिख लेते हैं ABCD और इसको लिख लेते हैं E, P लिख दिया। सो एरिया क्वाड्रेंट नाम हो जाएगा इसका APCD। APCD, दिस इज क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आप यहां लिखेंगे 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अगेन 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम पता कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल मींस πr²। रेडियस भी आपको पता है, दिस इज 1/4 पाई, ऐसे ही रखे रहने देंगे। आर की जगह आप लिखेंगे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज द यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। So you will write this just like that। अभी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। और फिर से देखिए हमने इस बार इस डिजाइन को सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज कर दिया। तो इसे हमने ले लिया ए ही है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, इसे हमने क्यू ले लिया। सो अगेन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट the name of quadrant is ABCQ। ABCQ, हम इस बार इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं ABCQ। ठीक है, तो चलिए यहां पे भी आप लिखेंगे दिस इज डियर
1/4 into area of circle. One by 4 pi r square. एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर. अब आप यहां भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4. पाई को सेम टू सेम रहने दीजिए. 8 स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर को पता कर लीजिए. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर आपको तो पता ही है, साइड स्क्वायर. साइड इज गिवन ऑफ दिस सर्कल इज 8 centimeter. So dear, you will write it just like that. 8 centimeter square, that is 64 centimeter square. Okay. Now what to do after this? You will write direct the area of the design. Now area of design. So dear, this is area of 2 quadrant. Minus area of square. तो आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया था, ये ही सामने लिखा हुआ है. दोनों का एरिया सेम ही है. 1/4 वैल्यू कितना है, 2 इंटू 1/4 8 स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहां पाई है तो पाई को हमने इस तरह से लिख दिया, π/4, बिकॉज 1 इंटू पाई मीन्स पाई. एंड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर अभी अभी फाइंड किया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए, सिंप्लीफाई करने से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा. 2 2 जा 4. ओके. और पाई का वैल्यू 22/7. और यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड डिवाइड बाई 2 भी है तो वो डिवाइड बाई 2 हमने यहाँ पे लिख दिया. -64 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे ये फिर से कैंसिल हो रहा है आपका. 2 से हमने ये 22 को कैंसिल कर दिया. मीन्स 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. नाउ 11 इंटू 64 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर -64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब देखिए ये सिंप्लीफाई करने का अपना अलग तरीका है. कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं. हमने क्या किया, 11 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 लिख लिया, एलसीएम लिया तो 7 आ गया. ये 7 आपका डायरेक्ट इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा, -7 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप देखिए 11 सेंटीमीटर स्क्वायर में 11 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दो. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 64x है तो 11x में से 7x माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4x है ना डियर. ये आपका हो जाएगा 4 इंटू x मतलब 64 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. मल्टीप्लाई कर लो 4 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओवरऑल ही कर लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा, दिस यू विल गेट 4 4 जा 16. कैरी आपका 1 होगा, वो कैरी इधर लिख दिया. और 4 6 जा 24,
4 6 जा 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24 और कैरी 1 25 एंड डिवाइड बाई 7 आपका सेम टू सेम रहेगा। इसे आप फिर से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, यू राइट डायरेक्टली हियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, यूनिट आपका कितना है? सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So dear, thank you and wish you all the best.